students, I welcome you all to today's session. I hope all of you are doing perfect at your places. Today's topic is more on MS PowerPoint 2010. In this chapter, we will learn applying transitions, presenting a slideshow, modifying themes, background styles. MS PowerPoint is a presentation software. You have learned that the information in a PowerPoint presentation is conveyed with the help of slides. And the content of each slide can be organized in different ways. There are various themes, background and effects available in PowerPoint which make it highly effective presentation software. तो पीछे की क्लासेस में और पीछे के चैप्टर्स में हमने माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट के बारे में पढ़ा कि प्रेजेंटेशन में स्लाइड्स को ऐड करते करते आप किसी भी टाइप की प्रेजेंटेशन देते हैं जिसमें आप अलग अलग टाइप की थीम्स, बैकड्रॉप, आपका जो फॉन्ट का तरीका होता है उसमें और सारी पिक्चर्स, एनिमेशंस, वीडियोस, ऑडियो, ये सारी चीज़ें ऐड करके आप एक अट्रैक्टिव प्रेजेंटेशन बना सकते हैं. Applying transitions. If you have ever seen a PowerPoint presentation that had special effects between each slide, then you have seen slide transitions. A transition can be as simple as fading to the next slide or as complex as a flashy, eye-catching effect. This means you can choose transitions to fit the style of any presentation. तो आपने अगर कभी भी कोई presentation देखी है जिसमें एक स्लाइड से दूसरी स्लाइड में जब चेंज हो रही होती है प्रेजेंटेशन तो अलग अलग टाइप के इफेक्ट्स दिखते हैं. दिस इज नथिंग बट द ट्रांजिशंस. इसमें अलग अलग टाइप के ट्रांजिशंस होते हैं जिसमें फेड अवे ट्रांजिशंस भी होता है और कॉम्प्लेक्स या अट्रैक्टिव आई कैचिंग ट्रांजिशंस भी होते हैं जो कि फ्लैशी होते हैं. तो आप स्लाइड्स के बीच में ट्रांजिशंस को ऐड करके आपकी प्रेजेंटेशन को और भी ज़्यादा अट्रैक्टिव बना सकते हैं. To apply a transition. Step 1. Select the slide you wish to modify. Step 2. Click the Transitions tab. Step 3. Locate the transition to this slide group. By default, none is applied to each slide. Step 4. Click the More drop-down arrow to display all the transitions. Step 5. Click a transition to apply it to the selected slide. This will automatically display a preview of the transition as well. तो आपका जो ट्रांजिशन होता है उसको ऐड करने के कुछ आपके स्टेप्स होते हैं. सबसे पहले आप उस स्लाइड को सिलेक्ट कर लेंगे जो आप मॉडिफाई करना चाहते हैं. आफ्टर यू हैव डन सिलेक्टेड द स्लाइड दैट यू वांट टू मॉडिफाई, आपको स्टेप 2 में ट्रांजिशंस टैब पे क्लिक करना है. ट्रांजिशन टैब पे क्लिक करने के बाद आपको ट्रांजिशन टू दिस स्लाइड ग्रुप को लोकेट करना है. बाय डिफॉल्ट कोई भी ट्रांजिशन यहाँ पे आपका सिलेक्ट नहीं हो रखा होगा. उसके बाद आपको मोर ड्रॉप डाउन एरो होगा, मोर के नाम से आपको उस पर क्लिक करना है. उसमें आपके सारे के सारे ट्रांजिशंस आपके सामने अपीयर हो जाएंगे. जैसे ही अपीयर हो जाएंगे जो आपने सिलेक्टेड स्लाइड है उसके साथ आपको कौन सा ट्रांजिशन चाहिए आप उसको सिलेक्ट कर सकते हैं. आपको ये सिलेक्ट होने से पहले एक प्रीव्यू भी दिखाएगा कि आपकी स्लाइड कैसी दिखेगी. When working with transitions, the apply to all command in the timing group can be used at any time to make your presentation uniform. Use this command with caution. Not only does it apply the same transition to every slide, but it also applies the settings in the timing group, which you may not want to be the same throughout your presentation. तो अगर आपको पूरी की पूरी प्रेजेंटेशन में हर स्लाइड में एक ही ट्रांजिशन चाहिए तो आपको अप्लाई टू ऑल कमांड यहाँ पर देना होता है. ये कमांड आपको कॉशियसली देना होगा, अदरवाइज आप नेक्स्ट टाइम भी जहाँ पर आपको नहीं चाहिए होगा ये कमांड ऑटोमेटिकली आपके हर स्लाइड पे ये कमांड दिख जाएगा. तो हमेशा कॉशियसली आपको ये क्लिक करना है. To preview a transition. You can preview the transition for a selected slide at any time using either of these two commands. Step 1. Click the preview command on the transitions tab. Step 2. Click the star play animations icon. The icon appears on the slides tab in the left pane beside any slide that includes a transition. तो आपको अगर प्रीव्यू करना है ट्रांजिशन, सिलेक्ट करने से पहले आपको देखना है कि वो ट्रांजिशन दिख कैसा रहा है. तो सबसे पहले आपको ट्रांजिशंस टैब में जाके प्रीव्यू पे क्लिक कर देना है. क्लिक करते ही आपके सामने एक प्ले एनिमेशंस आइकन आएगा, आपको उस पर क्लिक करना है. क्लिक करने के बाद आपका जो भी आइकन अपीयर हुआ है स्लाइड्स टैब में लेफ्ट पेन में, वो आपको हर स्लाइड पे इंक्लूड करके जो भी आपका अलग अलग टाइप का आपने एनिमेशन या ट्रांजिशन सेलेक्ट कर रखा है उसका प्रीव्यू आपको दे देगा.
To add sound, follow the given steps. Step 1, select the slide that includes the transition you wish to modify. Step 2, click the sound drop down menu in the timing group. Step 3, you will hear the sound and see a live preview of the transition as you hover over each sound. Step 4, click the sound to apply it to the selected slide. अब अगर आपको साउंड ऐड करना है आपकी स्लाइड में, तो सबसे पहले आप उस स्लाइड को सिलेक्ट कर लेंगे जिसको आपको मॉडिफाई करना है. जैसे ही आप स्लाइड को सिलेक्ट कर लेंगे, आपको टाइमिंग ग्रुप में जाके साउंड का ड्रॉप डाउन मेन्यू होगा, आपको उस पर क्लिक कर देना है. क्लिक करते ही आपको अलग अलग टाइप की साउंड्स वहाँ पर दिखाई देंगी और सुनाई देंगी. जैसे जैसे आप अलग अलग साउंड्स के ऊपर आप अपना कर्सर लेकर जाएंगे या हवर करते रहेंगे, तो आपको हर एक साउंड का प्रीव्यू मिलता रहेगा. आपको आपका जितना भी आपको जो भी साउंड आपको पसंद आ रहा है, जिस भी स्लाइड में आपको चाहिए, आप उसको सिलेक्ट करेंगे तो वो साउंड आपकी उस पर्टिकुलर स्लाइड पे आ जाएगी. To remove a transition, follow the given steps. Step 1, select the slide you wish to modify. Step 2, choose none from the gallery in the transition to this slide group. Step 3, repeat this process for each slide you want to modify. अब अगर आपको कोई भी ट्रांजिशन को रिमूव करना है, तो सबसे पहले आप उस स्लाइड को सिलेक्ट कर लेंगे जो आपको मॉडिफाई करना है. स्लाइड को सिलेक्ट करने के बाद आपको ट्रांजिशंस टू दिस स्लाइड ग्रुप में जाके नन पे क्लिक करना है. नन पे क्लिक करने के बाद आपको जितनी भी स्लाइड्स को ये मॉडिफाई करना है, आपको सेम प्रोसेस को रिपीट करते रहना है. To apply an animation to an object, follow the given steps. Step 1, select an object. Step 2, click the animations tab. Step 3, in the animation group, click the more drop down arrow to view the available animations. Step 4, select the desired animation effect. Step 5, the object will now have a small number next to it to show that it has an animation. Also, in the slide pane, the slide will now have a star symbol next to it. At the bottom of the menu, you can access even more effects. अगर आपको एनिमेशन डालना है, एनिमेशन के साथ आपको कोई ऑब्जेक्ट अगर डालना है, तो सबसे पहले आप एक ऑब्जेक्ट को चूज़ कर लेंगे. ऑब्जेक्ट को चूज़ करने के बाद आपको एनिमेशन टैब पे जाना है. एनिमेशन टैब पे जाने के बाद आपको एनिमेशन ग्रुप में मोर का ड्रॉप डाउन एरो होगा, आपको उस पर क्लिक करना है. उसमें आपके सारे अवेलेबल एनिमेशंस आ जाएंगे. इसके बाद आपको जो भी एनिमेशन का ऑब्जेक्ट चाहिए आप उसको चूज़ कर लेंगे. चूज़ करने के बाद आपका जो ऑब्जेक्ट है उसके बाहर एक नंबर आपका आएगा, जिसका मतलब है कि आपका जो एनिमेशन है उसके साथ एक ऑब्जेक्ट ऐड हो चुका है. ऑल्सो अब आपका जो ऑब्जेक्ट है उसके स्लाइड पेन में आपका एक स्टार सिंबल भी होगा, जिसका मतलब है कि एनिमेशन का ऑब्जेक्ट ऐड हो चुका है. इसके अलावा जो आपका बॉटम ऑफ द मेन्यू है उसमें आप और भी ज़्यादा एनिमेशंस को एक्सेस कर सकते हैं. To add multiple animations to an object. If you select a new animation from the menu in the animation group, it will replace the object's current animation. However, you will sometimes want to place more than one animation on an object. For example, an entrance and an exit effect. To do this, you'll need to use the add animation command, which will allow you to keep your current animations while adding new ones. Follow these steps. Step 1, select the object. Step 2, click the animations tab. Step 3, in the advanced animation group, click the add animation command to view the available animations. Step 4, select the desired animation effect. Step 5, if the object has more than one effect, it will have a different number for each effect. The numbers indicate the order in which the effects will occur. It's important to consider how you'd like animations to appear in your slideshow. Well-placed animations can help emphasize important points or information. अब अगर आपको ऑब्जेक्ट में मल्टीपल एनिमेशंस डालने हैं, तो यूल हैव टू मेक श्योर कि आपका जो एनिमेशन ग्रुप है, अगर आप कोई दूसरा उसमें ऑब्जेक्ट डालेंगे तो पुराने वाले को वो रिप्लेस कर देगा. तो इसके लिए आपको ऐड एनिमेशन कमांड पे जाके कुछ स्टेप्स को फॉलो करना पड़ेगा. सबसे पहले आपको ऑब्जेक्ट सिलेक्ट करना है. ऑब्जेक्ट सिलेक्ट करने के बाद आपको एनिमेशन टैब पे जाना है. एनिमेशन टैब पे जाने के बाद एडवांस्ड एनिमेशन ग्रुप में आपको ऐड एनिमेशन कमांड पे क्लिक करना है टू व्यू द अवेलेबल एनिमेशन. उसके बाद आपका जो भी डिजायर्ड एनिमेशन इफेक्ट है आप उसको सिलेक्ट कर लेंगे. सिलेक्ट करने के बाद अगर एक ऑब्जेक्ट में एक से ज़्यादा इफेक्ट है तो वो उसके अकॉर्डिंग उसमें नंबरिंग कर देगा, बताने के लिए कि इसमें आपकी एक से ज़्यादा एनिमेशंस
प्रेजेंट हैं। आफ्टर दैट आपका जो भी प्रेजेंटेशन है उसमें अलग अलग एनिमेशंस उसको सीक्वेंस में लगाना, उसको मैनेज करना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, सो दैट आप एम्फेसाइज कर पाए कि कौन सी इंफॉर्मेशन कितनी इंपॉर्टेंट है और कौन सी कम इंपॉर्टेंट है। Know it. Too many animation effects, however, can be fun, but they can be distracting and even annoying for the audience, especially in professional presentations. तो बहुत सारी जो एनिमेशंस होती हैं वो मज़ेदार तो बहुत होती हैं, लेकिन अगर प्रोफेशनल सेटअप में हैं तो बहुत ज़्यादा अनोइंग भी हो सकती हैं। तो हमेशा जो आप प्रेजेंटेशंस में एनिमेशंस डालते हैं आपको ये देखकर डालना चाहिए कि कौन से सेटअप में आप उसे दिखा रहे हैं। Presenting a slideshow. To present your slideshow, you'll need to know how to start it. PowerPoint allows you to start your slideshow from the first slide or from any slide within the slideshow. Once your slideshow has started, you'll need to know how to advance through the slides. तो आपको PowerPoint presentation ये allow करता है, enable करता है कि आप अपने slide show को स्टार्टिंग से भी स्टार्ट कर सकते हैं, पहली स्लाइड से, या फिर जिस भी स्लाइड से आप अपनी प्रेजेंटेशन को स्टार्ट करना चाहते हैं वहां से भी आपका स्लाइड शो स्टार्ट हो सकता है। लेकिन उसको आगे कैसे बढ़ाते रहना है, एडवांस कैसे करते रहना है, वो आपको पता होना चाहिए। To start a slideshow, follow the given steps. Step 1, select the slideshow tab. Step 2, click the From Beginning command in the Start Slideshow group to start the slideshow with the first slide. You can also start the slideshow from the slide you prefer by selecting the slide and clicking on From Current Slide from the Start Slideshow group. This option is convenient if you only want to view or present certain slides. Another option for starting a slideshow is to select slideshow view at the bottom of the window. तो आपको अगर slideshow start करना है, सबसे पहले आपको slideshow टैब पे जाना है। slideshow टैब पे जाते ही आपको क्लिक करना है from beginning कमांड पे, जो आपका start slideshow के ग्रुप में आपको प्रेजेंट होगा। आफ्टर दैट आपका जो भी फर्स्ट स्लाइड है वहां से आपका प्रेजेंटेशन स्टार्ट हो जाएगा। अगर आप चाहते हैं कि आपके किसी और स्लाइड से आप प्रेजेंटेशन स्टार्ट करें, नॉट नेसेसरीली द फर्स्ट स्लाइड, तो उस स्लाइड पे जाके आपको स्टार्ट स्लाइड शो के ग्रुप में फ्रॉम करंट स्लाइड पे क्लिक करना है। ये आप तब करते हैं जब आप स्टार्टिंग से प्रेजेंटेशन का स्लाइड शो नहीं चाहते हैं, एक स्पेसिफिक स्लाइड से ही आप करना चाहते हैं। इसके अलावा आप स्लाइड शो का जो पूरा का पूरा प्रेजेंटेशन है सीधे सीधे आपके स्लाइड शो व्यू होता है आपके बॉटम ऑफ द विंडो में, वहां से भी आप डायरेक्टली क्लिक करके उसको स्टार्ट कर सकते हैं। To advance and reverse slides. Step 1. Hover your mouse over the bottom right of the screen. A menu will appear. Step 2. Click on the right arrow to advance slides or click on the left arrow to reverse slides. You may also use the arrow keys on your keyboard to advance and reverse slides. फिर आपके आते हैं स्लाइड को आगे बढ़ाना और पीछे लेके जाना। तो इसके लिए आपको सबसे पहले आपका जो माउस है उसको बॉटम राइट ऑफ द स्क्रीन पे आप लेकर जाएंगे, आपके सामने एक मेन्यू अपीयर हो जाएगा। मेन्यू अपीयर होते ही आपको राइट एरो यूज करना है स्लाइड को आगे करने के लिए, एडवांस करने के लिए, और लेफ्ट एरो यूज करना है रिवर्स करने के लिए। इस सिंपली आपके जो कीबोर्ड में एरोज होते हैं उन पे भी आप राइट एरो यूज करेंगे तो आपकी स्लाइड आगे बढ़ जाएगी, लेफ्ट एरो यूज करेंगे तो स्लाइड रिवर्स हो जाएगी। टू स्टॉप और end a slideshow, follow the given steps. To end slideshow, hover and select the menu box options command and click end show. You can also press the ESC key at the top left of your keyboard to end the show. अब अगर आपको आपकी जो प्रेजेंटेशन है स्लाइड है उसको आपको बंद करना है तो सिंपली आपको अपना जो माउस है उसको आपको मेन्यू बॉक्स ऑप्शन में लेके जाना है, वहां पर आपका जो एंड कमांड होगा आपको उस पर क्लिक कर देना है, या फिर आपके कीबोर्ड में एकदम ऊपर टॉप लेफ्ट कॉर्नर पे सबसे पहला बटन ESC का होता है, उसको भी अगर आप प्रेस करेंगे तो आपका जो स्लाइड शो है वो एग्जिट हो जाएगा। Modifying themes. Suppose you really like the fonts from one theme, but you'd like to experiment with different color schemes. That's not a problem. You can mix and match the colors, fonts and effects from different themes to create a unique look for your document.
If it still doesn't look exactly right, you can customize the theme colors and theme fonts. तो कभी कभी ऐसा होता है जो आपकी themes present होती हैं वो अच्छी तो होती हैं लेकिन आपको experiment करना होता है, तो that's not a problem at all. आप अलग अलग themes को भी experiment कर सकते हैं. आपका जो documents होता है उसमें आपके अलग अलग theme fonts होते हैं, theme colors होते हैं, इनको use करते हुए आप अपनी theme को change कर सकते हैं. To change theme colors, follow the given steps. Step 1. From the Design tab, click the Theme Colors command. A drop-down menu will appear. Step 2. Hover the mouse over the different sets of theme colors to see a live preview. Step 3. Select the set of theme colors you desire or select Create new theme colors to customize each color इंडिविजुअली. अब अगर आपको कोई थीम का कलर चेंज करना है उसके लिए सबसे पहले आप डिजाइन टैब पे जाके थीम कलर्स कमांड पे क्लिक करेंगे. एक ड्रॉप डाउन मेन्यू आपके सामने आ जाएगा, उसमें आपके अलग अलग कलर्स होंगे. आपको हर एक अपना जो माउस का कर्सर है बिना क्लिक करे हुए आपको हर एक कलर पे लेके जाना है. आपको एक लाइव प्रीव्यू दिखता रहेगा जैसे जैसे आप अपने माउस की डायरेक्शन चेंज करते रहेंगे. इसके अलावा अगर आपको इनमें से कोई कलर पसंद नहीं आ रहा है तो आपको क्रिएट न्यू थीम कलर्स पे क्लिक करना है. इससे आप अलग अलग कलर्स को इंडिविजुअली यूज करके कस्टमाइज अपना थीम बना सकते हैं. To change theme fonts, follow the given steps. Step 1. From the Design tab, click the Theme Fonts command. A drop-down menu will appear. Step 2. Hover the mouse over the different sets of theme fonts to see a live preview. Step 3. Select the set of theme fonts you desire or select Create new theme fonts to customize each font individually. अब अगर आपको आपके फॉन्ट का जो कलर होता है या थीम होता है वो चेंज करना है, सबसे पहले आप डिज़ाइन टैब पे जाएंगे. डिज़ाइन टैब पे जाने के बाद आपको थीम फॉन्ट्स कमांड पे क्लिक करना है. एक ड्रॉप डाउन मेन्यू आपके सामने आ जाएगा. इसमें आपको अगर लाइव प्रीव्यू चाहिए तो हर एक जो आपका फॉन्ट का थीम है उस पर आप जाते जाएंगे तो आपको एक लाइव प्रीव्यू मिलता रहेगा. इसमें से आप कोई भी सिलेक्ट कर सकते हैं या फिर क्रिएट न्यू थीम फॉन्ट्स पे क्लिक करके इंडिविजुअली आप हर एक फॉन्ट को कस्टमाइज यानी कि जैसा आपको चाहिए उस तरीके से भी बना सकते हैं. To change theme effects, follow the given steps. Step 1. From the Design tab, click the Theme Effects command. A drop-down menu will appear. Step 2. Hover the mouse over the different sets of theme effects to see a live preview. Step 3. Select the set of themes effects you desire. अब अगर आपको थीम इफेक्ट चेंज करना है सबसे पहले आप डिज़ाइन टैब पे जाएंगे. डिज़ाइन टैब पे जाने के बाद आप थीम इफेक्ट्स पे क्लिक करेंगे. थीम इफेक्ट्स पे क्लिक करते ही आपके सामने एक ड्रॉप डाउन मेन्यू आ जाएगा. ड्रॉप डाउन मेन्यू आते ही आपको एक लाइव प्रीव्यू चाहिए तो हर एक थीम के ऊपर अपने माउस को लेकर जाएंगे, आपको एक लाइव प्रीव्यू मिलता रहेगा. इनमें से जो भी आपको पसंद है आप उसको सिलेक्ट करेंगे तो आपका जो भी थीम इफेक्ट है वो अप्लाई हो जाएगा. बैकग्राउंड स्टाइल्स. To further customize your slides, you can change the background's color and texture by choosing a different background style. The available background styles will vary depending on which theme you are choosing. अब आपकी प्रेजेंटेशन का जो बैकग्राउंड होता है उसको भी आप चेंज कर सकते हैं जिस भी टाइप का बैकग्राउंड आपको चाहिए. To apply a background style, follow the given steps. Step 1. From the Design tab, click the Background Styles command. Step 2. Select the desired style. The new background will appear in the slides. तो अगर आपको बैकग्राउंड का स्टाइल चेंज करना है तो सबसे पहले आपको डिज़ाइन टैब पे जाना है. डिज़ाइन टैब पे जाने के बाद आपको बैकग्राउंड स्टाइल्स कमांड पे क्लिक करना है. जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे आपके सामने अलग अलग टाइप के डिजायर्ड स्टाइल आ जाएंगे. आपको सिलेक्ट कर लेना है. सिलेक्ट करने के बाद आपका जो बैकग्राउंड है वो चेंज हो जाएगा. Know it. You can apply background styles to just one active slide, selected slides or to whole presentation. जो भी बैकग्राउंड स्टाइल आपने चूज करा है वो आप उस करंट स्लाइड पे भी अप्लाई कर सकते हैं, मल्टीपल स्लाइड्स पे भी अप्लाई कर सकते हैं या फिर पूरी की पूरी प्रेजेंटेशंस पे भी आप सेम टाइप का बैकग्राउंड स्टाइल अप्लाई कर सकते हैं. To revise, a transition can be as simple as fading to the next slide or as complex as a flashy, eye-catching effect. PowerPoint allows you to start your slideshow from the first slide or from any slide within the slideshow. All of the themes included in PowerPoint are located in the Themes group on the Design tab.
You can change the background's color and texture by choosing a different background style. तो आपके जो PowerPoint presentation में transition का एक feature होता है, it can be as simple as a fading slide या fading transition, and it can be as complex as a फ्लैशी ट्रांजिशन जो कि आई कैचिंग होता है. इसके अलावा आप फॉन्ट के थीम चेंज कर सकते हैं, फॉन्ट का स्टाइल चेंज कर सकते हैं और बैकग्राउंड को भी आप चेंज कर सकते हैं. स्लाइड शो आप स्टार्ट कर सकते हैं प्रेजेंटेशन में, फर्स्ट से भी स्टार्ट कर सकते हैं या फिर किसी भी स्पेसिफाइड स्लाइड से भी आप स्लाइड शो को स्टार्ट कर सकते हैं. सो स्टूडेंट्स, विद दिस वी कम टू द एंड ऑफ दिस चैप्टर. इसकी जितनी भी एक्सरसाइजेज आपको खुद से करनी है.